خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر۔ پی آر ٹی یو کے قیام کے 34 سال مکمل، بڑے پیمانے پر اجلاس کا انعقاد۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی و رکن اسمبلی بی گالا گنیش گپتا نے ان کی خدمات کی ستائش۔ خواتین کے امراض کی شعور بیداری و اس کی خاتمے کے لیے ہر ایک فرد آگے آئے۔ حیدرآباد کے ایم این جے کینسر ہاسپٹل میں منعقدہ پروگرام میں قانون ساز کونسل کے کویتا کا خطاب۔ شہر کی ترقی کے لیے رکن اسمبلی بی گالا گنیش گپتا کی جانب سے شہر کے سرحدی علاقوں میں 1 کروڑ 90 لاکھ کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا آغاز، عوام میں خوشی کی لہر۔ تین سالہ اسکیا ہانی کی تلاش میں محکمہ پولیس مستحکم، اے سی پی وینکٹیشورلو کا صحافتی بیان۔ محکمہ پولیس کی جانب سے ہر ممکنہ کوشش جاری، عوام سے آگے آنے کی اپیل۔ ڈپٹی میئر محمد ادریس خان کے ہاتھوں ڈویژن نمبر 14 میں بدکما ساڑیوں کی تقسیم۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نظام آباد اربن رکن اسمبلی بی گالا گنیش گپتا نے کیمپ آفس پر حکومت تلنگانہ کی جانب سے فراہم کردہ بدکما ساڑیوں کی خواتین میں تقسیم عمل میں لائی۔ نظام آباد اربن رکن اسمبلی بی گالا گنیش گپتا نے کیمپ آفس پر حکومت تلنگانہ کی جانب سے فراہم کردہ بدکما ساڑیوں کی خواتین میں تقسیم عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی تہذیب اور روایت کا حصہ مانے جانے والے بدکما تہوار کی تقاریب کو ہر سال کی طرح اس سال بھی خواتین کی جانب سے جوش و خروش کے ساتھ منانے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر KCR کی جانب سے بدکما تہوار کے موقع پر ہر ایک خاتون کو خصوصی تحفے کے طور پر بدکما ساڑیوں کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست حکومت عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور سنہرے تلنگانہ کا جو خواب ہے اس کو ریاست کے وزیر اعلیٰ پورا کرنے میں ہر ممکن کوشش کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں شہر کے میئر نیتو کرن نوڈا، چیئرمین پربھاکر ریڈی، میونسپل کمشنر چترا مشرا، سابق میئر سریمتی آکولا سجاتا، سابق کارپوریٹر چانگو بائی، TRS کارپوریٹرز اور TRS قائدین نے کی شرکت۔ చాలా ప్రాముఖ్యంగా ఉండేటటువంటి బతుకమ్మ పండుగ నేను చిన్నప్పుడు చూస్తూ ఉంటే మా అమ్మ వాళ్ళు కానీ మా అత్త వాళ్ళు కానీ బతుకమ్మ పండుగ వచ్చిందంటే ఎంత సంబరంగా జరుపుకునేవారు। దాని తర్వాత అది దాదాపుగా అంతరించిపోయినటువంటి పండుగ, ఎక్కడో కానీ కనబడకపోతుంది బతుకమ్మ। అట్లాంటి బతుకమ్మను మన కవితక్క అలియాస్ బతుకమ్మ తన భుజాల మీద వేసుకొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరిగి మళ్ళా బతుకమ్మ పండుగకి మళ్ళీ జీవం పోసి పైకి లేపేది। మరి ఈరోజు మన రాష్ట్రంలోనే కాదు, తెలంగాణ మహిళలు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా కూడా చాలా ఆనందంగా మరి ఈ బతుకమ్మ పండుగ జరుపుకుంటా ఉన్నారు। దీనికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించి హైదరాబాద్ నడిబొడ్డులో ఉన్నటువంటి ట్యాంక్ బండ్ పైన స్వయంగా తాను సతీ సమేతంగా విచ్చేసి डिवीजन नंबर 13 में 1 करोड़ 90 लाख लागत से सड़कों के कामों का अर्बन एमएलए बी गाला गणेश गुप्ता ने किया इफ्तिताह। डिवीजन को मजीद तरक्की की तरफ गामजान करने के लिए किए जा रहे इक़दाम, कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान।
डिवीजन नंबर 13 डायरी फार्म के इलाके में 1 करोड़ 90 लाख की लागत से सड़कों के कामों के अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, कॉर्पोरेटर हारून खान के हाथों आगाज अमल में आया। इस मौके पर अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि अगलती इलाकों की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं और अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के सिलसिले में डिवीजन नंबर 13 में वाक़ई डायरी फार्म की सड़कों की तामीर के लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर करते हुए तेजी के साथ इन कामों को मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर हारून खान ने कहा कि डिवीजन को मिसाली हल्के में तब्दील करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं ताकि अवाम को बेहतर से बेहतर सहूलतें मुहैया की जा सके। इन्होंने कहा कि डिवीजन में ड्रेन, सड़कों की तामीर, बरकी पोल्स, पीने के पानी की पाइपलाइन और दीगर सहूलतों के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं और मजीद फंड्स हासिल करते हुए डिवीजन को तरक्की की तरफ गामजान किया जाएगा। मोहम्मद हारून खान ने अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, टाउन सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील अहमद फाजिल की गुलपोशी और शालपोशी करते हुए खैर मकदम किया। इस प्रोग्राम में अजीज राही, अब्दुल बारी, खाइद टीआरएस के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बोधन रोड से लेके सारंगपुर हनुमान मंदिर तक जो डेयरी फार्म का रोड है 1.9 करोड़, बोले तो 1 करोड़ 90 लाख रुपए से जो नया रोड बनाया जाएगा। अभी यहाँ पे हमने इसका इनाग्रेशन किया। जो अभी रोड है उसका वाइडनिंग होगा और उसके कलवर्ट्स भी वाइडनिंग होगा, करंट खंभे भी हटाया जाएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोड ये एरिया में है, ये अच्छा रोड है क्योंकि यहाँ पे डेयरी फार्म भी है, लोग आते जाते रहते हैं। ये बहुत पुराना डेयरी फार्म निज़ामाबाद के काफ़ी मशहूर का डेयरी फार्म है और आगे सारंगपुर हनुमान मंदिर भी है, लोग आते जाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की नुमाइंदगी पर आज डिवीज़न नंबर 13 में डेयरी फार्म कमान से लेकर सारंगपुर मंदिर तक बीटी रोड का इनाग्रेशन अमल में आया है, जिसमें एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता साहब आए थे और मेयर मैडम, डिप्टी मेयर साहब, शकील अहमद फाजिल साहब, ये सब शिरकत किए हैं। 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से डिवीज़न नंबर 13 में रोड का काम अमल में आया है और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, इंचार्ज वलाला साहब का और बिलखुसूस बीगाला गणेश गुप्ता साहब का, जो मेरे डिवीज़न में इतना बड़ा काम अमल में आया है। और इसी तरह डेयरी फार्म ग्रेवी आर्ट खबरस्तान का एरिया में 15 लाख रुपए की लागत से मैं सीढ़ी और सामने का रोड चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाने का टेंडर हो चुका है। इंशाल्लाह आजकल में काम भी इनाग्रेशन काम में अमल में आएगा और जो कुछ काम बाकी रहा है डिवीज़न नंबर 13 में, इंशाल्लाह मजलिस की कामयाबी नुमाइंदगी पर मैं पूरा करने के लिए तयखुन देता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। 3 साला अज़किया हानि की तलाश में महकमे पुलिस मुस्तहकिम, एसीपी वेंकटेश्वरलू का सहाफती बयान। महकमे पुलिस की जानिब से हर मुमकिन कोशिश जारी, अवाम से आगे आने की अपील। गुज़िश्ता रोज शहर के बोधन बस स्टैंड इलाके से एक 3 साला अज़किया हानि लड़की की गुमशुदगी की खबर सोशल मीडिया व महकमे पुलिस में दर्ज होने के बाद से पुलिस की जानिब से खुसूसी टीम्स की तश्कील अमल में लाते हुए फोन ट्रैकिंग, सीसीटीवी चेकिंग के अलावा तमाम जिले के सरहदी इलाकों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए तलाश जारी है। आज महकमे पुलिस एसीपी वेंकटेश्वरलू ने अपने सहाफती बयान में सहाफियों के जरिए पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि महकमे पुलिस की जानिब से तमाम तर कोशिश की जा रही है और गुज़िश्ता शब बिला आराम तमाम महकमे पुलिस इस लड़की की तलाश में मसरूफ थे और अनकरीब नताज हासिल होने का इन्होंने इजहार किया। దాదాపు ఒక 4 టీంలు సెట్ చేయడం జరిగింది। 2 టీంలు వచ్చేసి ఈ ఆటోలు మనం సీసీ ఫుటేజ్లో జరిగినటువంటి ఆమె ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కడెక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన ఆటోలందరినీ కూడా మనం అదుపులో తీసుకోవడం జరుగుతుంది। తర్వాత సీసీ ఫుటేజ్లన్నీ కూడా ఒక టీం ఒక 5-6 టీంతో ఒక ఎస్ఐ సిఐ ఆధ్వర్యంలో సీసీ ఫుటేజ్లన్నీ కూడా సెట్ చేయడం జరుగుతుంది। తర్వాత సిడిఆర్స్ కాల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ప్రతి చోట మనం ఎక్కడెక్కడ అనుమానం వ్యక్తి తెలియదు అక్కడక్కడ అన్నీ కూడా పంపి చేయడం జరుగుతుంది। అనుమానితమైనటువంటి లేడీస్ని కూడా చాలా మటుకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళని విచారించడం కూడా జరుగుతుంది। త్వరలో కేసు డిటెక్టివ్ జరిగే అవకాశం చూస్తాను। మరి ఆమె ఎక్కిన ఆటోస్ కొన్ని మనం కలెక్ట్ చేసి ఆమె ఎక్కడి దాకా బోధన్ బస్ స్టాండ్ దాకా అక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళి బోధన్ బస్ స్టాండ్ దాకా పోయింది, తర్వాత ఆమె షాపింగ్ మాల్కి వచ్చిన రూట్ ఇవన్నీ కూడా మనం ట్రేస్ అయినాయి। 90% మనకు దొరికే ఛాన్స్।
तो अभी वो भी लगा रहे पहले तो पीरियड आइडेंटिफाई हुआ तो मिल जाते, कहीं नहीं मिल जाते। ठीक है, बॉर्डर पुलिस को भी अलर्ट कर लिया। 24/7 बॉर्डर में वेटिंग चेकिंग भी चल रहा है, नवी पेट में, बोधन में, सालोरा में, और तो वहाँ पर हमारा इंदलवाई में और कमरपल्ली में। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हाथों डिवीजन नंबर 14 में बदकमा साड़ियों की तकसीम। डिवीजन नंबर 14 भगत नगर में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, टाउन सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व कॉर्पोरेटर शकील अहमद फाजिल के हाथों हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली बदकमा साड़ियों की तकसीम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए खवातीन में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने कहा कि रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से गरीब घरानों की लड़कियां और खवातीन में बदकमा त्यौहार को मसरत के साथ मनाने और खुशियों को आगे बढ़ाने के लिए साड़ियों की तकसीम हर साल अमल में लाई जाती है। इन्होंने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत खवातीन में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर डिवीजन के खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी और साड़ियों को हासिल किया। साबिका सदर मुदरिस व सरपरस्त आला नेशनल हाई स्कूल मोहतरमा शमशुन्निसा बेगम का मुख्तसर से अलालत के बाद इंतकाल। नमाज जनाजा सुबह 11 बजे स्कूल में अदा की जाएगी। अवाम से दुआओं की अपील। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जाती है कि जनाब गुलाम नबी शतारी साहब मरहूम बानी वो करस्पॉन्डेंट नेशनल हाई स्कूल की अहलिया मोहतरमा और जनाब जकी शतारी व रजी शतारी की वालिदा मोहतरमा का आज 2 बजे दिन इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला मरहुमा की मगफिरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और पसमानदगान को सबर जमील अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मरहुमा नेशनल हाई स्कूल निजामाबाद की रूहरवा थी। अपने आखिरी वक्त तक मिल्लत के तुलबा व तालिबात को जेवर तालीम के साथ साथ इखलाकी इक़्तिदार की फरोग़ और इनकी हमत जहद तरबियत के लिए कोशा रही। इंशाअल्लाह कल बतारीख 10 अक्टूबर बरोज इतवार 11 बजे दिन नेशनल हाई स्कूल के मैदान में नमाज जनाजा अदा की जाएगी और तदफीन बाद नमाज ज़ोहर दरगाह सूफी नगर निर्मल में अमल में आएगी इंशाअल्लाह। कानून साज काउंसिल के रुकन के कविता ने हैदराबाद के MNJ कैंसर हॉस्पिटल की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए ब्रेस्ट कैंसर शौर बेदारी प्रोग्राम का झंडा लहराकर इफ्तिताह अमल में लाया। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने हैदराबाद के MNJ कैंसर हॉस्पिटल में मुनक़िदा ब्रेस्ट कैंसर गुज़िश्ता यौम शौर बेदारी प्रोग्राम का झंडा लहराकर इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि पहले 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद कैंसर में मुब्तला होते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि 30 साल अफराद भी कैंसर का शिकार होने का इजहार करते हुए कहा कि लड़कियों को हर साल यकीनी तौर पर कैंसर का टेस्ट करने के साथ साथ हर एक खातून अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने का इजहार किया। MNJ कैंसर हॉस्पिटल వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ క్యాంప్ అన్నది ఇవాళ సమాజంలో అత్యవసరం అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. అనేక మంది మహిళలు రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్స్ లేక బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అటువంటి పరిస్థితి నివారించడానికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మీద అవేర్నెస్ పెంచడానికి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం అన్నది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా शहर के बोरगा मुस्तखर पर वाक़ भूमरेड्डी कन्वेंशन हॉल में क़ियाम अमल में लाए गए PRTU की 34वां रियासती कौंसिल इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हमरा शिरकत की। शमा रोशन करते हुए प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया। जिले निजामाबाद में वाक़े भूमरेड्डी कन्वेंशन हॉल में क़ियाम अमल में लाए गए PRTU का 34वां इजलास रियासती कौंसिल मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हमरा शिरकत करके शमा रोशन करते हुए प्रोग्राम का आगाज अमल में लाते हुए PRTU नामी तंजीम से गहरा लगाव होने का इजहार किया और इन्होंने बताया कि 1,02,000 टीचर्स रहने पर इसमें से 75,000 अफराद PRTU के मेंबरान है और टीचर्स के फवायद व हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिलचस्पी के साथ खिदमत अंजाम देने वाले मेंबरान इस तंजीम में मौजूद होने का इजहार किया। इस मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि एक तालिब इल्म सख्त मेहनत करते हुए आला मुकाम हासिल करता है तो इसमें असातिज़ा साहिबीन का बहुत ही बड़ा अमल दखल होने का इजहार किया। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट मेंस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करें।
हुकूमत हिंद ने अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए तालीमी साल 2021-22 के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। पहली ता 10वीं जमात के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जा रही है, जबकि 11वीं जमात से PhD तक आला तालीम हासिल करने वाले तलबा को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए मेरिट मेंस स्कॉलरशिप मंजूर की जाएगी। तालीमी साल 2021-22 के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट मेंस स्कॉलरशिप्स के लिए किसी भी मजाज अथॉरिटी का जारी करदा सदाकतनामा आमदनी लाजमी रहेगा। इन 3 स्कीमात के लिए सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्तें ही दाखिल की जा सकती है। तमाम अहल तलबा हुकूमत हिंद के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वेबसाइट के तहत अपनी दरख्वास्तें दाखिल करवाए। इस साइट का एक लिंक वेबसाइट पर भी दस्तयाब रहेगा। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2021 है, जबकि पोस्ट मैट्रिक और मेरिट मेंस स्कॉलरशिप की दरख्वास्तें 30 नवंबर 2021 तक दाखिल की जा सकती है। दिसंबर 2021 तक दरख्वास्तों की तनखी होगी। एक नजर वक्फे की ओर। సింత్ షాపింగ్ మాల్ ఫెస్టివల్ కలెక్షన్స్ తో మీ ముందుకు వచ్చింది సింత్ షాపింగ్ మాల్. ఈ దసరా దీపావళి పండుగలకు మరింత శోభను చేకూర్చేవి మా వస్త్రాలు. కళ్ళు చెదిరే వైభోగాలు, ఎనలేని వస్త్ర సంపదలు, నీ మనసిక స్వర్గం స్వర్గం. అతివలకు పట్టు చీరలు, అందమైన చుడిదారులు, మగవారికి మెన్స్ వేర్, చిన్నారుల కిడ్స్ వేర్, నాణ్యతకు మన్నికకు చిరునామా సింత్ షాపింగ్ మాల్ 50% స్పెషల్ డిస్కౌంట్ సేల్. అందరం కోరుకునే సింత్ షాపింగ్ మాల్ ఇక అతిపెద్ద ఫెస్టివ్ సేల్ కి రెడీ. మీరు రెడీయేనా? అయితే విచ్చేయండి సింత్ షాపింగ్ మాల్, గాంధీ చౌక్, నిజామాబాద్. ఫోన్ 08462 222 590. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कोरोना वायरस केस में इजाफे का इशारा। त्योहारों और शादियों के मौसम में सख्ती से अमलावरी की हिदायत। मरकजी वजारत सेहत का इंतबाह। त्योहारों और शादियों के मौसम के दौरान कोरोना वायरस की वबा एक मरतबा फिर से शिद्दत इख्तियार कर सकती है। मरकजी हुकूमत के महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा इंतबाह के बाद मुल्क की कई रियासतों में हुकूमतों की जानिब से महकमे सेहत को चौकसी इख्तियार करने की ताकीद की गई है। जराये के मुताबिक मरकजी हुकूमत की जानिब से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के दौरान कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के खदशात जाहिर करते हुए कहा गया है कि इन महीनों के दौरान शहरियों को हुजूम मुकामात पर जाने से इज्तनाब करने के अलावा इन्हें मास्क के इस्तेमाल पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाने की ताकीद की गई है। और कहा गया है कि जिन लोगों ने अब तक कोरोना वायरस का टीका नहीं लिया है, इन्हें फौरी तौर पर टीका हासिल कर लेना चाहिए। मरकजी हुकूमत के महकमे सेहत की जानिब से आइंदा माह के दौरान मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला 18 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका अंदाजी के सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को देने के लिए 2 टीके मौजूद हैं, जिनमें से किसी एक या दोनों देने का फैसला किया जाएगा। मरकजी वजारत सेहत के इस इंतबाह पर मुल्क की कई रियासतों में दोबारा चौकसी इख्तियार करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि शादियों के मौसम के अलावा त्योहारों के दौरान एहतियात को यकीनी बनाने के लिए अवाम में शऊर उजागर किया जाएगा और इन्हें समाजी फासले की बरकरारी के साथ साथ सर्दी, नज़ला, जुकाम और दीगर अलामात की सूरत में फौरी कोरोना वायरस का मुआयना करवाने का मशवरा दिया जाएगा। तेलंगाना में डेंगू की वबा जारी है और डेंगू के अलावा कोरोना वायरस की अलामतों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए अवाम को ज्यादा से ज्यादा एहतियात के अलावा फौरी इलाज पर तवज्जो देने की जरूरत है। मुल्क के बेशतर रियासतों में कोरोना वायरस के तहदीदात को बतदरीज खत्म करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और स्कूलों की कुशादगी के अलावा तफरीह मुकामात की कुशादगी अमल में लाई जा चुकी है। बताया जाता है कि मरकजी हुकूमत के नए इंतबाह के बाद दिल्ली, केरला के अलावा महाराष्ट्र में हुकूमत की जानिब से मास्क के लुज़ूम पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाने की ताकीद की जा रही है। और अगर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होता है तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जानिब से दोबारा तहदीदात आयद की जाएगी। इंटर फर्स्ट ईयर इम्तहानात के शेड्यूल में मामूली तब्दीली। 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर के इम्तहानात 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मुनक्किद करने का फैसला।
तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तिहानी शेड्यूल में मामूली तरमीम की है और इम्तिहानी तारीख में तब्दीली के अहकामात जारी किए गए हैं। जारिया माह 29 और 30 अक्टूबर को मुनक़िद शुदनी इम्तिहानात को 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मुनक़िद करने का फैसला किया है। 25 अक्टूबर को सेकेंड लैंग्वेज, 26 अक्टूबर को इंग्लिश, 27 अक्टूबर को मैथ्स 1A बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस, 28 अक्टूबर को मैथ्स 1B ज़ूलॉजी, हिस्ट्री, 31 अक्टूबर को फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, 1 नवंबर को केमिस्ट्री, कॉमर्स, 2 नवंबर को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 नवंबर को मॉडर्न लैंग्वेज, जियोग्राफी पेपर्स के इम्तिहानात मुनक़िद होंगे। क़ब्ल तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से 25 अक्टूबर से इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात मुनक़िद करने का शेड्यूल जारी किया गया था। तालीमी साल 2020-21 में कोरोना बहरान के बाइस इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात को मनसूख करते हुए हुकूमत ने फर्स्ट ईयर के तमाम तलबा को सेकेंड ईयर में प्रमोट किया था। 70% निसाब पर मुश्तमिल इम्तिहानात मुनक़िद करने का अहदेदारों ने फैसला किया है। अहदेदारों ने ऐलान किया कि सुबह 9 ता दोपहर 12 बजे इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात होंगे। इम्तिहानात के दौरान कोरोना के रहनुमाना उसूल पर सख्ती से अमलावरी की जाएगी। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर तेलंगाना यूनिवर्सिटी मुक़र्रर। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी को पब्लिक रिलेशन ऑफिसर तेलंगाना यूनिवर्सिटी मुक़र्रर किया गया है। वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रविंदर गुप्ता की हिदायत पर रजिस्ट्रार तेलंगाना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पी कनकैया ने इस सिलसिले में अहकाम की इजराई अमल में लाते हुए डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी को पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जायज जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है और मौसूफ ने अपने ओहदे का जायजा भी हासिल कर लिया। ये जिम्मेदारी पहले से तफवीज़ करदा यूथ वेलफेयर ऑफिसर और इंचार्ज स्पोर्ट्स व गेम्स तेलंगाना यूनिवर्सिटी के अलावा जायद होगी। क़ब्ल डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से दी गई जायज जिम्मेदारियां APRO, चीफ वार्डन, एडिशनल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को बहस्न खूबी अंजाम दिया। मजीद इसके अलावा अकेडमिक सतह पर सदरनशीन बोर्ड ऑफ स्टडीज शोबे उर्दू पर भी फाइज रह चुके और यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ कमेटियों के अलावा एडवाइजरी बोर्ड व कॉलेज के गवर्निंग बॉडी मेंबर भी है। यहाँ इस बात का तस्करा बेजान ना होगा कि डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबेजात में अहम ओहदे पर अपनी खिदमात को बहुस्न खूबी अंजाम देते हुए अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है। वो शहर निजामाबाद के मारूफ स्पोर्ट्स पर्सन वो फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद अब्दुल बारी साहब मरहूम महकमे ट्रेजरी व अकाउंट्स के फर्जन होते हैं। मौसम गुज़िश्ता कई सालों तक शहर हैदराबाद के मौखर अखबारात के अलावा लंदन, इंग्लैंड के मौखर अखबारात उर्दू टाइम्स से भी वाबस्ता रहते हुए अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम दी और सहाफती मैदान में भी एक नुमाया मुकाम हासिल किया। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी को पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुक़र्रर किए जाने पर यूनिवर्सिटी असातिज़ा कराम, तुलबा और तालिबात के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी ने इस ओहदे पर फाइज करने पर वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रविंदर गुप्ता और रजिस्ट्रार प्रोफेसर बी कनकैया से इजहार तशक्कुर करते हुए इन्हें दी गई महफूजा जायज जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी अंजाम देने और यूनिवर्सिटी के शोबे ताल्लुकात आमे को फरोग देने में कोई कसर न छोड़ने का अज़्म किया है। भैंसा म्यूनसिपलिटी में हो रहे तरक्याती कामों की रियासती वजीर KTR ने की असम्बली में सताइश। भैंसा म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद की निगरानी में हो रहे तरक्याती कामों को रियासती असम्बली में KTR ने ऐवान में मौजूद स्पीकर व मेंबरान असम्बली को बताते हुए म्यूनसिपल अमले की जानिब से दिए जाने वाले मुख्तलिफ कामों की सताइश की। दौरान असम्बली इन्होंने भैंसा शहर में वाईकुंठ दामम स्कीम के तहत चल रहे डेवलपमेंट वर्क की तस्वीर भी अयां की। వైకుంఠ దామాలు కడతాం, దీనికోసం కూడా 200 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇస్తా ఉన్నాం. అది మున్సిపాలిటీ డబ్బులు కాదు, మీకు అనుమానం ఎక్కువ కాబట్టి ముందే చెప్తా ఉన్నాం. మున్సిపాలిటీ డబ్బులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డబ్బులను వేరువేరు ఉండవు, అన్ని ఒకటే అయినప్పటికీ బడ్జెట్ నుంచి నేరుగా ఈ రకంగా ఇస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష। आरमूर शहर के अंबेडकर चौरास्ते पर जय भीम सेना के जेरे निगरानी में काशी राम की 15वीं बरसी का शानदार पैमाने पर इनेकाद। आरमूर शहर के अंबेडकर चौरास्ते पर जय भीम सेना के जेरे निगरानी में काशी राम की 15वीं बरसी का इनेकाद अमल में लाते हुए इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर जय भीम सेना सदर पिंजा अशोक ने खिताब करते हुए काशी राम की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में जय भीम सेना इमरान व दीगर ने शिरकत की।
आरबन शहर के आरएनबी गेस्ट हाउस में बीएसपी के जेर निगरानी में बीएसपी के बानी कांशीराम की 15वीं बरसी को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। आरमूर शहर के आरएनबी गेस्ट हाउस में बीएसपी के जेर निगरानी में बीएसपी के बानी कांशीराम की 15वीं बरसी का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए इनकी तस्वीर पर फूलमालाएं पहनाते हुए जबरदस्त तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कांशीराम अवाम की खुद मुख्तारी व तरक्की के लिए खदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीएसपी कायदीन व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मियां नीतू किरण के हमरा म्यूनसिपल दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए बदकमा तकारीब का इफ्तिताह अमल में लाया। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मियां नीतू किरण के हमरा म्यूनसिपल दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए बदकमा तकारीब का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि ये त्यौहार तेलंगाना की तहजीब व सगावत को उजागर करता है। इस 9 रोज़ा त्यौहार के सिलसिले में रियासत तेलंगाना में मुक़ीम ख़वातीन बदकमा खेल को खुशी के साथ खेलने का इजहार करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी बदकमा त्यौहार के मौके पर ख़वातीन की खुशियों को दोबाला करने के मकसद के तहत बदकमा साड़ियों की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर, म्यूनसिपल इंचार्ज कमिश्नर चित्रा मिश्रा, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद की साबिक़ा जिले कलेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले अशोक कुमार एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज होने के बाद इनकी निगरानी में क़ियाम अमल में लाए गए अशोक सागर का किया मुशाहिदा। जमीयत उलमा कामरेड्डी का क़ियाम आम व खास और शहरियान कामरेड्डी के लिए खुशाइंद है। इन ख्यालात का इजहार जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद मौलाना मोहम्मद मजदकुल खासमी ने किया और जमीयत उलमा की तामीरी खिदमात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि मुल्क व मिल्लत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए 100 साल से काम करती आ रही ये तंजीम मिली व मजहबी तंजीम है जिसको बुजुर्गाने दीन औलिया अल्लाह ने अपने खून जिगर से सींच कर सन 1919 में कायम किया और मुसलसल मुसलमानों की दीनी तालीमी फिक्र करते आ रहे हैं। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा हाफिज पीर खलील अहमद साबिर ने कहा कि हम दूसरे लोगों और जमातों और तंजीमों पर उंगलियां उठाने को ही सब कुछ समझ लेते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने और गिराने में वक्त ज़ाय कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि मुल्क व मिल्लत के लिए मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के लिए तामीरी काम करने में अपनी सलाहियतों को लगाए। जमीयत उलमा का काम महज खिदमत इंसानियत है जिसकी तालीम खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने और हमारी शरीयत ने हमको दी है। जमीयत उलमा मजलूमों की आवाज़ और मजबूरों की हिम्मत का नाम है। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल ख़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा निज़ामाबाद ने 9 मुंतखबा ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देते हुए हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा व दीगर ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमें मुकाबला आराई व महज आराई के बगैर अल्लाह को राजी करने के लिए इस जमात से वाबस्ता होने और काम करने की जरूरत है। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती इरफान जमजम क़ासमी ने भी खिताब किया और क़ियाम जमीयत को वक्त का तकाजा बताते हुए अपने ताउन की यकीन दहानी कराई। मौलाना इजाज क़ासमी, जनाब अनवर साहब, मौलाना मुफ्ती मुजाहिद आरिफी साहब, मौलाना शेख अहमद साहब मुजाहिरी, हाफिज शेख सादिक साहब, हाफिज मुजाहिद, हाफिज हाशमी, मुफ्ती साजिद आरिफी, हाफिज इलियास जमजम, हाफिज रिजवान ने प्रोग्राम में शिरकत की। इसके अलावा दीगर अजला से मौलाना सैयद समीउल्लाह क़ासमी ने भी खिताब किया और जमीयत से वाबस्तगी को जरूरी करार दिया। मौलाना खालिद बेग, मौलाना अब्दुल रकीब, मौलाना रिजवान भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। जमीयत उलमा कामरेड्डी का क़ियाम आम व खास और शहरियान कामरेड्डी के लिए खुशाइंद है। इन ख्यालात का इजहार जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद मौलाना मोहम्मद मजदकुल खासमी ने किया और जमीयत उलमा की तामीरी खिदमात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि मुल्क व मिल्लत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए 100 साल से काम करती आ रही ये तंजीम मिली व मजहबी तंजीम है जिसको बुजुर्गाने दीन औलिया अल्लाह ने अपने खून जिगर से सींच कर सन 1919 में कायम किया और मुसलसल मुसलमानों की दीनी तालीमी फिक्र करते आ रहे हैं। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा हाफिज पीर खलील अहमद साबिर ने कहा कि हम दूसरे लोगों और जमातों और तंजीमों पर उंगलियां उठाने को ही सब कुछ समझ लेते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने और गिराने में वक्त ज़ाय कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि मुल्क व मिल्लत के लिए मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के लिए तामीरी काम करने में अपनी सलाहियतों को लगाए। जमीयत उलमा का काम महज खिदमत इंसानियत है जिसकी तालीम खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने और हमारी शरीयत ने हमको दी है। जमीयत उलमा मजलूमों
की आवाज़ और मजबूरों की हिम्मत का नाम है। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद ने 9 मुंतखबा ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देते हुए हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा व दीगर ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमें मुकाबला आराई व महज आराई के बगैर अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस जमात से वाबस्ता होने और काम करने की ज़रूरत है। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती इरफान ज़मज़म क़ासिमी ने भी खिताब किया और क़ियाम जमात को वक्त का तकाजा बताते हुए अपने ताउन की यकीन दहानी कराई। मौलाना इजाज़ क़ासिमी, जनाब अनवर साहब, मौलाना मुफ्ती मुजाहिद आरिफी साहब, मौलाना शेख अहमद साहब मुज़ाहिरी, हाफिज शेख सादिक साहब, हाफिज मुजाहिद, हाफिज हाशमी, मुफ्ती साजिद आरिफी, हाफिज इलियास ज़मज़म, हाफिज रिजवान ने प्रोग्राम में शिरकत की। इसके अलावा दीगर अजला से मौलाना सैयद समीउल्लाह क़ासिमी ने भी खिताब किया और जमीयत से वाबस्तगी को ज़रूरी करार दिया। मौलाना खालिद बेग, मौलाना अब्दुल रकीब, मौलाना रिजवान भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। मेरे दोस्तों, मुल्क के अंदर आज भी फिरका परस्त हुकूमत के आंख में आंख डालकर बात करने की अगर सलाहियत है तो जमीयत उलमा के अकाबिरीन के अंदर है। इसलिए कि फिरका परस्त तंजीम को भी ये बात का इल्म है कि ये वो जमात के लोग हैं जिनके बड़ों ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई और अपना खून बहाया। जितनी भी तंजीमें जमातें हैं मुल्क की, चाहे वो सियासी जमातें हो, मजहबी जमातें हो, सबको इस बात का इल्म है कि जमीयत का क्या निज़ाम और क्या उसके कारनामे। आप अभी करीब में देखें, दिल्ली के अंदर के फसादात के हो, गुजरात में फसादात का मौका हो, जेलों में हजारों नौजवान गिरफ्तार होकर वहां पर महबूस हो गए। शक व शुबात की खातिर इनकी अपनी अहलिया को हलाक करने वाले मुजरिम गणेश को तहवील में लेने का एसीपी वेंकटेश वर्लू ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के एसीपी वेंकटेश वर्लू ने एसीपी दफ्तर से खिताब करते हुए कहा कि माकलूर मंडल बोनकमपल्ली से ताल्लुक रखने वाले गद्दला रानी गणेश की दूसरी बीवी होने की बिना पर हर आए दिन बीवी पर शक करते हुए ज़दोकोब करते हुए इस माह की 5 तारीख को मुलंगी के मुस्तखर पर गणेश ने इनकी अपनी अहलिया गद्दला रानी पर पेट्रोल छिड़क कर हलाक करने पर मुजरिम गणेश के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तहकीकात करने का इंकशाफ किया। గత వారం రోజుల క్రితం జరిగినటువంటి ఒక ఆడామె హత్య ఇక్కడ కూడా హత్య ఎవరు చేసిండ్రు ఆనవాళ్ళు లేకుండా ఆమెని పైనుంచి కిరోసిన్ పోసి తగలబెట్టి రోడ్డు పక్కన పొలంలో పెట్టడం జరిగింది। దాని మీద అప్పుడు మనం మాక్లూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో క్రైమ్ నంబర్ 184/21 కింద అండర్ సెక్షన్ 302 201 ఐపీసీ కింద కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది। దానిలో ఎలాంటి క్లూస్ లేవు, అమ్మాయి ఎవరో కూడా చనిపోయిన ఆడామె కూడా ఎవరో తెలియదు, ఎలాంటి క్లూస్ లేవు। దాన్ని బేస్ చేసుకొని మేము ఏదైతే అన్ఐడెంటిఫైడ్ డెడ్ బాడీలకు ఉన్నటువంటి మా ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మేము అప్లై చేయడం జరిగింది। లైక్ వాళ్ళ బట్టలు, బాడీ మీద ఉన్న బట్టలు తీయడం, తర్వాత చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఏమైనా వస్తువులు ఇట్లా దొరికి చెప్పి దాన్ని చేయడం, తర్వాత ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళపైన ఉన్నటువంటి ఆర్నమెంట్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఆ సీజ్ చేసిన ఆర్నమెంట్స్ని ఇవన్నీ కూడా చాలా చోట్లలో మనకు ఎక్కడెక్కడ అనుమానం ఉంటాయి, ఎక్కడెక్కడ మిస్సింగ్ కేసులు, చుట్టుపక్కల పోలీస్ స్టేషన్లలో మిస్సింగ్ కేసులు ఎక్కడెక్కడ ఉంటే అక్కడక్కడ మనం సెర్చ్ చేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటే మాక్లూర్ ఎస్ఐ గారు, తర్వాత వాళ్ళ ప్రొవిషనల్ ఎస్ఐ గారు, తర్వాత సిఐ గారు మంచి టీం వర్క్ చేసి ఉన్న చిన్న ఆధారాలతో దానిలో ఆ చుట్టుపక్కల ఏ విలేజ్లలో అమ్మాయి తప్పిపోయిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు, మిస్సింగ్ కేసులు ఏమున్నాయి। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। PRTU के क़ियाम के 34 साल मुकम्मल, बड़े पैमाने पर इजलास का इनेकाद। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी व रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने इनकी खिदमत की सताइश। ख़वातीन के अमराज की शोर बेदारी व इसकी खात्मे के लिए हर एक फर्द आ गया। हैदराबाद के MNJ कैंसर हॉस्पिटल में मुनक़िदा प्रोग्राम में कानून साज काउंसिल के कविता का खिताब।
शहर की तरक्की के लिए रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से शहर के सरहदी इलाकों में 1 करोड़ 90 लाख की लागत से तरक्याती कामों का आगाज अवाम में खुशी की लहर। तीन साल अस्किया हानि की तलाश में महकमे पुलिस मुस्तहकिम, ACP वेंकटेश्वरलू का सहाफती बयान। महकमे पुलिस की जानिब से हर मुमकिन कोशिश जारी, अवाम से आगे आने की अपील। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हाथों डिवीजन नंबर 14 में बदकमा साड़ियों की तकसीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत।